Hello students, this is your next chapter of Beehive book, chapter number 8, Reach for the Top. This unit has two biographical pieces that depict persistent endeavors to reach for the top. So students, in this video, we are going to read about a very interesting lesson that fills our heart with the desire that nothing is impossible in the world. The story reveals the bold and courageous act of Santosh Yadav and Maria Sharapova. We learn from them that nothing is impossible in the world if we have dedication and firm determination to achieve our goal. The story teaches us that the courageous persons have capability to overcome hardness and reach the top of सक्सेस. सो बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका रिच फॉर द टॉप टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, संतोष यादव एंड मारिया सारापोवा. तो संतोष यादव के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन थी और किस तरीके से उन्होंने एक डिटर्मिनेशन लिया और किस जगह से ये आई थी. ओके, सो द होल स्टोरी revolves around the life of Santosh Yadav and Maria Sharapova. It reveals courage, firm determination, and hard work rendered by Santosh Yadav and Maria Sharapova, which proved a boon for their success. Their self reliance is excellent. Santosh decided to try her luck in mountaineering and was successful. She has conquered Mount Everest twice. Maria decided to become the best tennis player. She did so. The heartless in their path did not depress them. They themselves are the central point of the story. So, the title is quite appropriate here. So, this story is of a courageous lady named Santosh Yadav. It is an interesting story that fills our heart with the desire that nothing is impossible. It is up to us to realize our dream and achieve them with the pure hard work. The single minded determination and dedication help us overcome all the hurdles and emerge as a winner. In this story, a young girl named Santosh Yadav from a small village of Haryana conquered the Mount Everest twice in her life, and Maria Sharapova has become the world famous tennis player. Their dedication and determination made the role models for others to follow. So guys, इसमें संतोष यादव जो है वो माउंट एवरेस्ट को फतेह करती है ट्वाइस टाइम, और जो सेकंड पार्ट है आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है, सेकंड पार्ट है बच्चों ये मारिया सारापोवा. आप देख रहे हैं ये जो है ये फर्स्ट वुमेन सिंगल टेनिस में क्या थी, ये इन्होंने कॉन्कर्ड या विजय हासिल की है. ठीक है, समझ आ गया. तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है संतोष यादव. थिंक फॉर अ वाइल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 persons you idolize or admire very much for their achievements. Your idols may be from any sphere of life: sports, medicines, medicine, media, or art and culture. So, your teacher will then discuss your choice or with you to find out who the top 5 idols of your class are. सो जैसे हम लोगों का कोई ना कोई आइडल्स होता है, हम किसी को आइडल मान लेते हैं, तो किसी न किसी फील्ड से ज़रूर होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, मेडिसिन से हो, मीडिया से, आर्ट है, कल्चर एट्सेट्रा, किसी से भी हो सकता है. तो
हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 या 5 पर्सन ऐसे जिनको हम बहुत अच्छा अपना आइडल मानते हैं उनको नाम लिखिएगा आप बच्चों, और नाम लिखने के बाद उनके बारे में उनसे एडमायर वेरी मच, मतलब तुम उनसे एडमायर क्यों हुए, कितने प्रभावित क्यों हुए कि तुमने उनको अपना आइडल मान लिया, और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया। इस तरीके से आप 3 या 5 पर्सन के नाम लिखिएगा, उनके बारे में सोचिए कि हम उनसे एडमायर क्यों हैं, प्रभावित क्यों हैं, और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं। वो आपके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हो सकते हैं। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं संतोष यादव का। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. So आज हम एक ऐसी महिला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो विश्व की एकमात्र महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार ओज़े प्राप्त की है। और वो ऐसे समाज में क्या हुई है, पैदा हुई है, ठीक है। बोर्न इन अ सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग। वो एक ऐसे समाज में पैदा हुई थी जहाँ जहाँ बेटे के जन्म को एक वरदान या ब्लेसिंग मानी जाती थी। एंड अ डॉटर, और लड़की को थो नॉट कंसिडर टू कर्स, अभिशाप तो नहीं माना जाता, लेकिन जनरली बेटी को अच्छा नहीं माना जाता था। मीन्स संतोष यादव का जन्म ऐसे समाज में हुआ था जहाँ बेटे को ज़्यादा ब्लेसिंग मानी जाती थी। अगर किसी के यहाँ पे बेटा पैदा हो जाता मतलब बेटे को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। बेटी को वहाँ अभिशाप या पाप तो नहीं माना जाता था, ठीक है, लेकिन जनरली जो इसके बेटी अगर किसी के यहाँ पैदा हो जाती थी तो उन्हें अच्छा नहीं माना जाता था। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing, जब संतोष की माता, मतलब इसमें जो हम संतोष की बात पढ़ रहे हैं संतोष यादव को, सो संतोष की माता जब अपनी बेटी को जन्म देने की तैयारी कर रही थी तो एक वहाँ पर होली मैन आया घूमता हुआ। गिविंग हर हिज ब्लेसिंग एज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, और उसको आशीर्वाद दिया, ठीक है। एक साधु आया वहाँ पर घूमता हुआ और ये सोचकर कि इस जो लेडी है ये, इसको बेटे की क्या होगी, मतलब ज़रूरत होगी, और वो चाहती है कि उसको बेटा पैदा हो। और उस साधु ने संतोष की माँ को आशीर्वाद दिया, ठीक है, कि जाओ तुम्हें क्या होगा, बेटा पैदा होगा। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन ये सबके लिए क्या था, एक सरप्राइज था, आश्चर्य वाली बात थी। क्या? द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, उस अनबोर्न चाइल्ड की जो दादी थी, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो कि संतोष की माँ के बगल में खड़ी थी जब उसे साधु ब्लेसिंग कर रहा था कि तुम्हें बेटा पैदा होगा, टोल्ड हिम, तो उस अनबोर्न चाइल्ड की जो ग्रैंड मदर थी, मतलब संतोष की दादी जो कि संतोष की माँ के बगल में खड़ी थी, उसने साधु से कहा दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, वो बेटा नहीं चाहते। मतलब ये बड़े आश्चर्य की बात हुई कि ऐसे समाज में जहाँ पर बेटे को ज़्यादा अच्छा माना जाता था वहाँ पर उसकी दादी माँ बेटे को नहीं चाह रही थी। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, इस बात को लेके जो साधु था वो भी बड़ा सरप्राइज हुआ कि सब तो यहाँ बेटा मांगते हैं, लेकिन मैं पहले एक ग्रैंड मदर, एक दादी देख रहा हूँ जो कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और वो चाहती है कि उसे बेटी पैदा हो, बेटा पैदा ना हो। नेवरदिलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, उसने क्या किया, नेवरदिलेस मतलब उसने उसको आशीर्वाद दिया। किसको? नेवरदिलेस मतलब तब भी उसने उसकी दादी की बातों को सुनकर उस साधु ने आशीर्वाद दिया कि जो भी वो चाहिए उनको, ठीक है, जो भी उनकी इच्छा है उनके अनुसार ही क्या हो, बच्चा पैदा हो, मतलब बेटी को चाह रहे थे वो, तो आप समझ सकते हैं। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और भाग्य में ऐसा ही हुआ।
संतोष वॉज बोर्न द सिक्स चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स। संतोष 5 भाइयों के बाद परिवार में छठी बच्ची थी, जो कि जिसके क्या थे 5 भाई पहले थे और वो छठी थी। अ सिस्टर टू, वो की क्या थी, एक छोटी बच्ची थी। 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की एक बहन थी वो। शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावाज ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। उसका जो जन्म था वो हरियाणा में रेवाड़ी जिला के छोटे से गांव जोनियावास में हुआ था। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष। उस लड़की का नाम संतोष रखा गया, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका क्या था, उसका जो मीन्स था वो संतुष्टि थी। बट संतोष वॉज नॉट अलाउड कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। पर संतोष एक ट्रेडिशनल जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। उसने अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू किया। मतलब समझ रहे हैं ना यहाँ पर क्या है, जैसे कि उसने बताया कि उस लड़की का नाम संतोष रखा। संतोष का जो मतलब होता है कॉन्टेंटमेंट। कॉन्टेंट मीन्स का मतलब होता है संतुष्ट रहना, लेकिन वो ऐसी लड़की थी कि वो अपने कल्चर से संतुष्ट नहीं थी और उसने अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू किया। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पर जो अन्य लड़कियाँ थी वो क्या करती थी, ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी। मतलब परंपरागत रूप से जो भारतीय ट्रेडिशनल था वो उसी के कपड़े पहनती थी, उस जैसे ही। संतोष प्रिफेयर्ड शॉर्ट, संतोष वहाँ पर शॉर्ट पहनना पसंद करती थी। मतलब जहाँ पर लड़कियाँ सूट सलवार पहनना पसंद करती थी, वहाँ पर संतोष ने क्या प्रिपेयर किया, शॉर्ट्स। लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड that if I choose a correct and a rational path, the others around he had to change, not me. तब उसने बीते हुए समय को याद करते हुए कहा कि जब उसने शुरू में यह क्या लिया, डिटरमाइन किया, संकल्प कर लिया कि यदि मैं एक सही और तर्कपूर्ण रास्ता चुनती हूँ, मतलब एक सही रास्ता चुनती हूँ, तो मेरे आसपास के लोगों को बदलना पड़ेगा, मुझे नहीं। इस तरीके का उसने यहाँ पर ये वर्डिंग कही। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best school, even to the country's capital, न्यू दिल्ली। संतोष के माता पिता जो थे एक धनी जमींदार थे, जो अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में भेजने में समर्थ थे। यहाँ तक कि वो राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली जैसे शहर में क्या कर सकते थे, बच्चों को भेज सकते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोजली बाय, जो कि उनके क्या थी, बहुत नज़दीक में थी, पास में थी। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम्स इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। लेकिन क्या हुआ, लेकिन मैं भी बच्चों के मतलब वो भेज सकते थे, लेकिन परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार संतोष को गांव के ही पास वाले स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ के कस्टम्स जो थे वो अलग अलग थे। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम एंड हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। तो उसने डिसाइड किया कि निश्चय किया या डिसाइड किया कि जब सही समय आएगा तो वो इस सिस्टम से चुपचाप लड़ेगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16। और जब वह 16 वर्ष की थी तो वो सही समय आ गया। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। गांव की अधिकांश लड़कियों का 16 साल की उम्र में क्या हो जाता था, विवाह हो जाता था। मतलब उस गांव की मोस्टली जो लड़कियां होती थी उनका 16 ईयर्स में क्या हो जाती थी, शादी हो जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष भी क्या थी, अपने माता पिता के दबाव में थी। ठीक है, संतोष के माता पिता भी उस पर क्या कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे कि तुम क्या करो, शादी कर लो। A marriage as early as that was the last thing on her mind. उसके माइंड में इतनी जल्दी विवाह करने की सबसे कम इम्पोर्टेंट बात थी। मतलब अ मैरिज इज अर्ली इज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। उसके माइंड में ये चीज़ नहीं थी
कि मतलब क्या करे, वो इतनी जल्दी शादी करे। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने अपने माता पिता को धमकी दी कि यदि उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो कभी भी शादी नहीं करेगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. और वो क्या थी, वो घर से चली गई और दिल्ली में उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, मतलब एडमिशन ले लिया, इनरोल करा लिया अपने आप को। When her parents refused to pay for her education, she politely informed that of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. जब उसने एडमिशन ले लिया बच्चों, तो उसके माता पिता ने उसे इस खर्चा देने से मना कर दिया, क्योंकि उस लड़की ने दिल्ली के एक स्कूल में अपने बलबूते पर क्या लिया था, एडमिशन लिया था। जब उसके पेरेंट्स ने उसे खर्चा देने से मना कर दिया, तो उसने एक लेटर लिखा और एक पोलाइटली तरीके से इन्फॉर्म किया अपने पेरेंट्स को कि उसने एक प्लानिंग बनाई है कि वो पार्ट टाइम जॉब करेगी और अपनी स्कूल की फ़ीस दे देगी। देन हर पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। तब उसके माता पिता ने उसकी एजुकेशन के लिए पैसे देने के लिए एग्री हो गए। समझ आ गया ना। तो ये यहाँ पर जो बच्ची है, ये एक ऐसे सोसाइटी से निकल कर आई थी जहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, जहाँ पर लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। ठीक है, इसने क्या किया, स्टार्टिंग में ही जहाँ लड़कियाँ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहनती थी, इसने शॉर्ट्स पहनना शुरू किया। और जहाँ लड़कियों की 16 ईयर्स में शादी हो जाती थी, उसने अपने घर वालों के अगेंस्ट गई और उसने शादी ना करके आगे की पढ़ाई करने का निश्चय लिया। ठीक है, और उसने अपने आप से दिल्ली में एक स्कूल में जाकर एडमिशन ले लिया। तो इस तरीके से लड़की के अंदर क्या है, करेजियस है, किसी चीज़ को पाने की हिम्मत दिखा रही है वो। ठीक है, और देन उसके बाद क्या हो रहा है, उसके पेरेंट्स भी धीरे धीरे उसके साथ एग्री हो रहे हैं। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education. अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसने कहा उसकी जो थोड़ी थोड़ी पढ़ने की इच्छा थी वो बढ़ती गई और उसके फादर भी, मतलब हमेशा थोड़े और पढ़ाई करने की इच्छा करते हुए उसने अपने पिता से अधिक शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा धीरे धीरे अपने अंदर बना ली। मतलब ये कि उसने बोला कि पिताजी थोड़ा और पढ़ लेती हूँ, थोड़ा और पढ़ लेती हूँ, थोड़ा और पढ़ लेती हूँ, और ऐसे करते करते उसने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर ली। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली और वो जयपुर चली गई। शी ज्वाइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उसने क्या किया, वहाँ पर उसने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा ले लिया। संतोष याद करते हुए हमें बताती है कि कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। उन्होंने बताया कि कस्तूरबा जो हॉस्टल था उसके सामने अरावली की पहाड़ी थी। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। उसने बताया कि मैं अपने कमरे से गांव वाले लोगों को देखा करती थी, ठीक है, जो कि उस हिल्स पर चढ़ते थे। वे पहाड़ी पर ऊपर जाते थे और थोड़े समय के बाद क्या हो जाते थे, वो गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं उन लोगों को जाकर देखूंगी कि वो कहाँ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। मैं जब वहाँ पर पहुँची तो मैंने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पर मुझे सिर्फ कुछ पर्वतारोहियाँ, जिन्हें हम माउंटेनियर्स कहते हैं, जो पर्वत पर क्या करते हैं, चढ़ते हैं, ठीक है, क्लाइंबिंग करते हैं बच्चों, तो मैंने सिर्फ उनके अलावा वहाँ पर कोई नहीं देखा। आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा, इफ़ आई कुड ज्वाइन देम, क्या मैं उनमें सम्मिलित हो सकती हूँ या उन्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. और उन्होंने मुझे अफर्मेटिव स्वीकार किया और उन्होंने मेरा उत्तर सुनकर वो थोड़े खुश हुए और आश्चर्य भी हुए, और उन्होंने फिर मुझे क्या किया, अपने साथ लेने के लिए अनुमति दे दी।
मतलब ये कि मैंने क्या किया, कस्तूरबा गांधी, मैंने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और कस्तूरबा जो थी, मेरा क्या था, कस्तूरबा जो हॉस्टल था वहाँ पर मैंने एक अपना रूम लिया। तो मैंने देखा कि मेरे रूम के सामने से अरावली पहाड़ी पहाड़ी दिखती थी और उस पर कुछ गांव वाले जाते दिखाई देते थे, लेकिन वो गायब हो जाते थे। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद जाऊंगी और वहाँ पर देखूंगी। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची अरावली पर्वत श्रृंखला पर, तो मैंने देखा कि उस अरावली पर्वत श्रेणी पर कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला। सिर्फ मुझे कौन मिले, माउंटेनियर्स मिले। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ ज्वाइन कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे बड़े ही अच्छे से आंसर दिया और मैं उनके साथ क्या हो गई, ज्वाइन कर लिया मैंने। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। तब उस डिटरमाइंड लड़की ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी सेव्ड मनी एंड enrolled in a course at उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उस लड़की ने कुछ पैसे बचाए और उत्तरकाशी नेहरू जो माउंटेनियरिंग संस्थान थी वहाँ पर एडमिशन ले लिया। तो बच्चों बता दूं मैं आपको, माउंटेनियरिंग कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है उत्तरकाशी में, जो कि वहाँ पर बच्चों को माउंटेनियरिंग सिखाते हैं, मतलब क्लाइंबिंग करना सिखाते हैं कि पहाड़ों पर किस तरीके से चढ़ा जाता है और पहाड़ों पहाड़ों पर किस तरीके से मतलब पर्वतारोहण किया जाता है। तो उस लड़की ने, संतोष ने, कुछ पैसे इकट्ठा किए और उत्तरकाशी का जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग था उसमें एडमिशन ले लिया। My college semester in Jaipur was to end in April, but it indeed ended on the 19th of May. उसने बताया कि जयपुर में मेरे कॉलेज के सेमेस्टर अप्रैल में समाप्त होना था, पर 19 मई को समाप्त हुआ, क्योंकि वो नेहरू इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन ले लिया था उसने, उधर उसकी पढ़ाई चल रही थी। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st। और मुझे क्या था, और मुझे ये उम्मीद थी कि मैं 21 मई को उत्तरकाशी में पहुंच जाऊंगी। ठीक है। सो आई डिड नॉट गो बैक होम। तो मैं मई की छुट्टियों में घर पर नहीं गई। ठीक है, मैं घर नहीं जा पाई और इसकी बजाय मैं सीधे कहाँ पहुँच गई, इंस्टीड, इसकी जगह पर आई हेटेड स्ट्रीट फॉर द ट्रेनिंग, और मैं सीधा ट्रेनिंग के लिए उत्तरकाशी चली गई। समझ आ गया ना। मतलब उस बच्ची के जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए मई में, तो बच्चे क्या होते हैं जून की छुट्टी के लिए घर जाते हैं, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने वहाँ पर 21st में सीधा मैं उत्तरकाशी चली गई। ठीक है। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। और तब मैंने क्या किया, अपने पिताजी को एक अपोलॉजी लेटर लिखा, क्योंकि मैं उनकी बिना परमिशन के उत्तरकाशी में एडमिशन ले लिया था। डे आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर। अब क्या हुआ, उसके बाद भी संतोष हर एक साल, ठीक है, पर्वतारोहण मिशन पर जाती रही। Her climbing skills matured rapidly also. She developed a remarkable resistance to cold and the altitude. अब क्या था, उसने क्या किया, उसने अपनी डिटर्मिनेशन, इच्छा से, ठीक है, और वहाँ पर क्या उसकी जो पर्वत पर चढ़ने की जो स्किल्स थी उसमें तेज़ी से निखार आया। मतलब स्किल्स उसकी क्या होगी, पावरफुल, मिच्योर होती गई। और तो और उसने ठंड से और ऊंचाई से लड़ने की क्षमता भी अपने आप में क्या कर ली, और विकसित कर ली। मतलब वो उस एल्टीट्यूड से, मतलब ठंड में और ऊंचाई पर किस प्रकार से रहा जाता है, ऐसा उसने वो विकास कर लिया, अपनी स्किल्स में डेवलपमेंट कर लिया। Equipped with an iron oval physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself rapidly। और डिटर्मिनेशन, उसकी इच्छा से, उसके जो शरीर था, उसकी कैपेसिटी से, उसने अपने मानसिक डिटर्मिनेशन से ये क्या कर लिया, सुसज्जित कर लिया, मतलब टफनेस कर लिया अपने शरीर को, और अपने आप को क्या थे, अपने आप को इतना योग्य बना लिया कि वो अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती है। मतलब इतना उसने अपने आप को हार्ड बना लिया। द culmination of her hard work and sincerity came in 1992।
अब क्या हुआ, सन 1992 में उसका जो ये जो उसने हार्ड वर्क किया था, उसका जो हार्ड वर्क था वो लास्ट मोमेंट पर पहुंच गया था। मतलब ये कि अब उसे ऐसा टाइम मिलने वाला था कि वो 1992 में अब ऐसा समय आ गया था कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती है। शी हैड shyly asked the Aravali mountaineers if she could join them. A barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. तो उसने क्या किया, मतलब ये कि अभी वो क्या कर रही है, यह बात केवल 4 साल पहले की थी जब उसने शर्माते हुए अरावली पर्वतारोही जो माउंटेनियर्स थे उनसे पूछा था कि क्या वह भी उनके साथ शामिल हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो अब क्या थी, अब वो केवल 24 वर्ष 24 ईयर्स की थी और संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को विजय कर लिया। मतलब उस संसार की पहली ऐसी लेडी थी जिन्होंने कितने ईयर्स में, मात्र 20 ईयर्स में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को क्या कर लिया था, अचीव कर लिया था, उस पर फतेह हासिल कर ली थी। समझ आ गया, मतलब ये कि वो क्या थी, उसने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया, ठीक है, कि वो उसने 22 साल की उम्र में, ठीक है, वह संसार की पहली सबसे कम उम्र की महिला थी जिसने ये असाधारण काम इतनी सफलतापूर्वक से कर लिया था। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her senior, उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, फिजिकल फिटनेस थी और मेंटल स्ट्रेंथ थी, उसकी मानसिक क्षमता, उससे उसके सीनियर जो थे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए। हर कंसर्न फॉर अदर एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द फेलो क्लाइंबर्स। और ये जो था, उसने उसके जो साथी थे, जो उसके सीनियर थे, और उसके जो स्किल्स को देखकर उसकी जो शारीरिक, मतलब जो उसकी फिजिकल फिटनेस थी और उसकी जो मानसिक ताकत से उसके जो सीनियर लोग थे वो उन पर उसने छाप डाल दी और दूसरे लोगों के लिए उसकी चिंता, उसके साथ मिलकर काम करने की इच्छा से साथी प्रवासियों के दिलों में जगह बना ली। मतलब जो सीनियर्स थे उसने इनको इसकी टफनेस, फिजिकल फिटनेस और क्लाइंबिंग स्किल्स को देखकर उससे ये कहा कि तुम क्या करो, हमारे साथ मिलकर काम करो, ठीक है। और इसकी वजह से उन सीनियर्स के दिलों में संतोष यादव ने क्या कर ली, जगह बना ली, ठीक है। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव provided special care to climber who lay dying at the South Col. सन 1992 में एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक पर्वतारोही जो उसका साथी था, जो कि साउथ कॉल पर क्या हो गया था, बिल्कुल डेड हो गया था। मतलब उसको कह सकते हैं कि क्लाइंबर टू ले डाइंग एट साउथ, मतलब मरने वाला था, ठीक है। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। समझ आ गया, मतलब सन 1992 में एवरेस्ट मिशन के दौरान पर जो संतोष यादव गई थी, तो एक जो उसके साथ क्लाइंबर था, माउंटेनियर था, एक मेंबर था, ठीक है, उस मेंबर का क्या हो गया, वो उसको मतलब साउथ कोल पर बिल्कुल कैसा मिला उसको, मतलब वो डाइंग एट द साउथ, मतलब लेट गया था, मतलब मर गया था। तो उसकी मतलब उसने बहुत देखभाल करी पर फिर भी वो उसको नहीं बचा पाई। शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, उसने दूसरा पर्वतारोही था जिसका नाम क्या था, मोहन सिंह, हु वुड हैव मीट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। उसने बताया कि एक की तो वो देखभाल नहीं कर पाई क्योंकि वो तो मर गया, लेकिन दूसरे की उसने, जो कि मोहन सिंह नाम से, बचाने की कोशिश की। और यदि वो लड़की उसके साथ अपना ऑक्सीजन शेयर नहीं करती तो शायद वो मोहन सिंह भी पहले वाले क्लाइंबर की तरह मर जाता। ये 1992 की एक इवेंट हुआ संतोष यादव के साथ जब वो इस मिशन पर गई थी, एवरेस्ट मिशन पर, ठीक है। मतलब ये कि साउथ कॉल पर दो व्यक्ति उसको उसके साथ जो थे, ठीक है, वो गए थे, तो उसने उसमें से एक को नहीं बचा पाई और दूसरे को अपनी ऑक्सीजन शेयर कर उसने बचा लिया। विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने में ही, संतोष फाउंड herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them.
12 महीने में संतोष यादव को इंडो नेपाली महिला पर्वतारोहण दल का सदस्य बना लिया गया। एंड शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, तब उसने दूसरी बार, तब उसे क्या कर लिया गया, मतलब बना लिया गया। और उस टीम ने संतोष यादव के साथ काम करने के लिए उसे, संतोष यादव को क्या किया, इनवाइट किया। एंड शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट टू सेकेंड टाइम, और तब उसने एवरेस्ट पर दूसरी बार क्या करी, फतेह हासिल करी। And thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing the herself and India a unique place in the annals of mountaineering। और तब उसने क्या किया, 2 बार एवरेस्ट विजय पर क्या बनाया, अपना कीर्तिमान बनाया और पर्वतारोहण के इतिहास में भारत के लिए एक गौरवशाली स्थान प्राप्त किया। The Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the पद्म श्री। और तब उसकी इन उपलब्धियों की प्रशंसा में करते हुए भारत सरकार ने राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्म श्री उसको प्रदान किया। समझ आ गया, मतलब 2 बार ये महिला क्या थी, माउंटेनियरिंग कर चुकी थी। Describe her feeling when she was literally on time on top of the world। जब वो संसार के सबसे ऊपरी छत पर पहुंची तो उसने अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया। संतोष हैज सैड, संतोष ने कहा कि इट टुक सम टाइम फॉर द enormity ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। ये जो टाइम था, ये जो क्षण था मेरे लिए, उसे समझने के लिए बहुत कुछ समय लगा। उस तब उसने बताया कि मतलब इस महान काम को समझने के लिए मुझे लिए कुछ समय लगा। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड एट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तब मैंने भारत का तिरंगा झंडा फहराया संसार की छत पर, मतलब सबसे ऊंची संसार की छत पर मैंने भारत का झंडा फहराया। द फीलिंग एज इनडिस्क्राइबेबल, वो जो मेरी फीलिंग थी वो इनडिस्क्राइबेबल थी, मतलब मैं उनको अपनी फीलिंग का डिस्क्राइब नहीं कर सकती। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, भारत का संसार की छत पर भारत का झंडा फहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, ये एक सच में एक स्पिरिचुअल मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे भारतीय होने का गर्व महसूस किया। Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। वो जो थी एज अ fervent environmentalist, वह एक जोशीली पर्यावरण रक्षक भी थी और संतोष ने हिमालय से 500 किलो कूड़ा कचरा इकट्ठा करके नीचे लाई थी। तो ये जो स्टोरी थी ये संतोष यादव की थी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को ट्वाइस टाइम माउंटेनियरिंग किया था। ठीक है, मतलब 2 बार उन्होंने क्या किया था, पर्वतारोहण किया था और दोनों बार क्या किया उन्होंने, वहाँ पर विजय हासिल करी, माउंट एवरेस्ट पर वो पहुँची। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि डिटर्मिनेशन हो आपके अंदर और करेजियस हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम इनकी बैकग्राउंड को देखें तो ये एक ऐसे समाज से थी जहाँ पर लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी और इसी लड़की ने अपने पेरेंट्स का अपना क्या किया, नाम किया, क्योंकि इनके अंदर क्या था, डिटरमाइंड था, एक डिटर्मिनेशन था, एक दृढ़ निश्चय था कि इनको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। तो यदि आप भी ऐसे कोई अपनी क्या कर लेते हैं, कोई डिटर्मिनेशन कर लेते हैं तो आप हमेशा उसमें क्या होते हैं, सक्सेस होते हैं। तो बच्चों ये पार्ट तो फर्स्ट, सेकंड पार्ट है मारिया सारापोवा का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। और एक बार चैप्टर को रीड जरूर करें किया करो बच्चों, जिससे आप लोगों को कुछ चीज़ें जो समझ नहीं आती वो समझ आ जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।